Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Commerce and Industries, Textiles, Government of India, Shri Piyush Goyal ji, who is joining us in this event through the video conferencing link. Shri Ashwini Kumar Chaubey ji, Honorable Minister of State, Government of India, Department of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Forest and Climate Change and Environment. Shri Rohit Kumar Singh ji, Honorable Secretary, Government of India, Department of Consumer Affairs. Honorable Justice Amreshwar Pratap Sai ji, President, National Consumer Disputes Redressal Commission. मंच पर विराजमान माननीय श्री प्रमोद कुमार तिवारी जी, डीजी भारतीय ब्यूरो, मानक ब्यूरो, श्री शांतनु जी, ASFA, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Presidents of State Consumer Disputes Redressal Commission, members of the National Consumer Disputes Redressal Commission, members of the State Consumer Disputes Redressal Commission, presidents and members of the District Consumer Commissions, voluntary consumer organizations के सदस्य, industry के representatives, secretaries, additional secretaries, principal secretaries to the state government and government of India who are gracing this occasion, distinguished guests, ladies and gentlemen. यशोभूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर के सुंदर परिसर में मैं आप सभी सम्मानित अतिथियों का आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2023 के अवसर पर विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले एक वर्ष में वेरी डिलिजेंटली काम किया है और एक साल के बाद जो हम आज मिल रहे हैं उसमें नंबर ऑफ अचीवमेंट्स और इनिशिएटिव्स हैं। ये सब हमारे आदरणीय मंत्री जी और सीनियर सहयोगियों के मार्गदर्शन में नए पॉलिसी डिसीजंस और इनिशिएटिव्स को क्रियान्वयन किया गया है। These are initiatives to strengthen consumer protection, safety and consumer rights. I would like to highlight some of the few initiatives and guidelines which have recently been taken by the department, and these are far-reaching for consumer protection and support in the era of digital trade and commerce. One of these is relating to dark patterns. You must have heard about dark patterns, which are largely e-commerce sites wanting subscribers to move towards certain subscription traps or misleading them to buy while checking out at the basket or giving you insurance policies and so on and so forth, जिसके बारे में हम लोगों को काफी कम जानकारी होती है, परंतु ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस के कारण वो ऑप्शंस ऑटोमेटिकली टिक हो जाते हैं या ऑटोमेटिकली आप वो सब्सक्राइब करते रहते हैं। तो इस प्रकार के बहुत से नए पहलू ई-कॉमर्स की दिशा में जो पोर्टल्स हैं या साइट्स हैं उनको यूज करनी है। So a far-reaching decision or initiative जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का है वो is knowledge about dark patterns while using e-commerce entities। इसके बारे में और विस्तृत चर्चा टेक्निकल सेशन में की जाएगी। The initiatives taken by the department with regard to price stabilization and price monitoring. We have increased a large number of price monitoring centers in close to 500 districts. Over 500 districts we get daily prices of 22 essential commodities, and based on the dynamics of the wholesale and the retail prices which are received from these 550 price monitoring centers, dynamic decisions are taken by the Government of India, policy decisions for creating buffer storages, for making market interventions, and many other initiatives of the government are taken to give better prices and commodities, quality commodities. जिसमें पिछले एक वर्ष में अत्यधिक कार्य किया गया है, सेंटर्स बढ़ाए गए हैं, बफर स्टॉक जो अनियन और पल्सेस का बढ़ाया गया है और विभाग ने खास तौर पे मार्केट इंटरवेंशंस किए हैं
टोमेटो प्राइसेस के लिए, अनियन प्राइसेस के लिए, आटा और दाल चावल बेचने के लिए जो उन्होंने कार्य किया है वो अभूतपूर्व रहा है। These relate to the Legal Metrology Act. The weights and measures का कार्य है, उसको मॉडर्नाइज किया गया है, उसमें बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स आदरणीय मंत्री जी की मार्गदर्शन में लिए गए हैं। Many of the sections of the Legal Metrology Act have been liberalized, and these are not affecting the consumer, but they are bringing ease of business to the industry and trade. Similarly, LM का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव विभाग करने जा रहा है, जिसके डिटेल में आगे आदरणीय सेक्रेटरी साहब आपको बताएंगे। टाइम डेसिग्नेशन प्रोजेक्ट के बारे में एक बहुत बड़ा कार्य किया जा रहा है। एटॉमिक क्लॉक लाके देश के सैटेलाइट सिस्टम के द्वारा गांव-गांव तक समय पहुंचाया जाएगा। या हमारी जो भी एजेंसीज हैं जिनको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की आवश्यकता है कमर्शियल एरिना, उसको सपोर्ट करने के लिए विभाग एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है। A lot of work has also been done in innovations, and one of the innovations I would like to mention or where we have started a brand. और आदरणीय मंत्री जी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदरणीय राज्य मंत्री जी, आदरणीय प्रेसिडेंट NCDRC जस्टिस शाही जी, DG BIS श्री प्रमोद तिवारी जी, शांतनु जी हमारे नेशनल सेक्रेटरी एनएफए, विनीत माथुर जी, अनुपम मिश्रा जी, ऑनरेबल members of NCDRC, honorable presidents of SCDRC from various states, my fellow officers, senior economic advisor, cost advisor, chairman NCCF, MD NCCF, DG ATH, all the award winners, very hearty congratulations to you all, and distinguished guests, ladies and gentlemen. विनीत जी ने मेरा काम आसान कर दिया है। जो मैं बोलना चाह रहा था उसमें से बहुत सारी चीजें उन्होंने बोल दी हैं, पर फिर भी चूंकि मैं यहाँ हूँ तो थोड़ी बहुत विभाग के संबंध में अपनी बात रखूंगा। हमारे ये दो प्रोग्राम होते हैं, एक दिसंबर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और एक मार्च में अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के जो आयोजन होते हैं, इसकी टाइमिंग बड़ी स्ट्रेटेजिक है। दिसंबर वाले में हमें इस कैलेंडर ईयर में हमने क्या क्या किया उसका लेखा जोखा रखने का अवसर मिलता है, और मार्च वाले में हमने जो फाइनेंशियल ईयर में किया उसको आपके सामने रखने का मौका मिलता है। तो इस मौके का उपयोग करते हुए मैं कुछ जो विनीत जी ने बातें बताई इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हुए, थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कि हमें उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में what are the big things that we did in this calendar year, which is 2023, which is soon coming to an end. और उसके पहले आप सभी को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की हार्दिक बधाई। और जिस तरह से आप सबके सहयोग से सरकार, जुडिशरी, उद्योग, व्यापार, उपभोक्ता, स्वयंसेवी संस्थाएं सबने मिलजुल कर जो उपभोक्ता के अधिकारियों के लिए जो मूवमेंट में जो मोमेंटम बना रखा है वो इसी प्रकार आगे भी बना रहे, ऐसी आशा के साथ आपको उपभोक्ता दिवस की बधाई। हमारा जो विभाग है मुख्य रूप से इसके 4 पिलर्स हैं, इसका विनीत जी ने थोड़ा जिक्र किया। पहला है फूड इन्फ्लेशन का मैनेजमेंट। जो देश में आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कीमतों को सभी के लिए कैसे अफोर्डेबल रखा जाए और उसकी उपलब्धता देश में बनाए रखी जाए, ये हमारा सबसे प्राइमरी जॉब है। और हम लगातार 4 सचिवों की कमेटी हर बुधवार को बैठकर देश में जो प्राइसेस हम 550 स्थानों से इकट्ठा करते हैं उसका विश्लेषण करते हैं कि कहाँ देश के किस हिस्से में किस कमोडिटी की प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, उसकी क्या सिनेरियो है, आगे की फसल कैसी आ रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या सीन है, विदेशों की क्रॉप कैसी है, और उसको कैसे भारत के व्यापार की जो नीतियां हैं उसको कैसे उसमें ट्वीट करके उसको संतुलित रखा जाए ताकि हमारे यहाँ कीमतें काबू में रहे और उपलब्धता भी बनी रहे। ये उन वस्तुओं के बारे में मैं कह रहा हूँ जहाँ पे हमारी आत्मनिर्भरता अचीव होने में थोड़ा समय है और जहाँ हमारा उत्पादन और हमारी खपत के बीच में थोड़ा गैप है, विशेषकर
दालों के संदर्भ में मैं बात कह रहा हूँ। इसमें हमने कीमतों में नियंत्रण के लिए पहली बार देश के इतिहास में होलसेल और रिटेल इंटरवेंशन पर जोर दिया है कि अगर किसी वस्तु की कीमतें अनावश्यक रूप से किसी क्षेत्र में बढ़ी हुई हैं तो हमारी संस्थाएं NCCF और नाफेड उसको एक जगह से खरीदकर दूसरी जगह लगभग 5000 रिटेल पॉइंट्स हैं, इसमें से बहुत सारे मोबाइल हैं, कुछ फिक्स्ड हैं, उनके माध्यम से उसकी सेल करती है और उससे कीमतों पर नियंत्रण करने में आसानी रहती है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो उनकी परिकल्पना है कि हैकाथॉन किया जाए और लोगों से, विद्यार्थियों से, साइंटिस्ट से, स्टार्टअप से, उद्योगों से आइडियाज लेकर उनको हमारा जो रोजमर्रा का काम है उसमें शामिल किया जाए। तो हमने अनियन में एक पिछले वर्ष हैकाथॉन किया और हमारे पास बहुत 700-800 आइडिया है कि अनियंस को कैसे देर तक प्रिजर्व करके रखा जा सके ताकि उनका जो खराबा है, जो वेस्टेज है, उसको कम किया जा सके। नॉर्मली आपको कुछ लोगों को आश्चर्य होगा कि अनियन का जो पेरिशेबिलिटी है, जो खराब होती है उत्पादन, वो लगभग 20 से 25% है। इसका मतलब अगर भारत में 100 लाख टन का उत्पादन हो रहा है उसमें से 20-25 लाख टन खराब हो जाता है क्योंकि उसकी स्टोरेज की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको ज्यादा देर तक रखा जा सके। उसका हमने हैकाथॉन कराया, देश विदेश से लोगों ने पार्टिसिपेट किया और हमारे विजेता यहाँ बैठे हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और उनके जो आइडियाज हमें मिले, जिसको हमारी एक्सपर्ट्स की टीम ने उसका विश्लेषण किया और उसको हम आगे बढ़ाएंगे, उसको मेंटर करेंगे। आशा है NCCF उसमें सहयोग करेगा ताकि जो आइडिया है और जो अचीव हम करना चाहते हैं उसमें तालमेल हो सके। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि तुम्हारा विभाग सबसे बड़ा है क्योंकि 140 करोड़ देशवासी तुम्हारे क्लाइंट है जो एक दिन में मल्टीपल बार कंज्यूमर की भूमिका में रहते हैं और उसकी महत्ता को देखते हुए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो फ्रेमवर्क है, जो ढांचा है, उसको हमने बहुत मजबूत प्रयास करने का प्रयास किया है। और उसकी पहली कड़ी होती है अगर किसी को कोई शिकायत है, सबसे पहले तो वो जो सेलर या इंडस्ट्री या फिर उसके पास जाता है कि मेरा सामान खराब है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसको ठीक कर दीजिए। अगर जो निर्माता या ट्रेडर है उसको सॉल्व नहीं कर पाता है तो जैसा मेरी दीदी ने बताया कि हमारे पास एक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में ऑमनी चैनल है, 1915 पर फोन कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर या जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम में उनसे टैग कर सकते हैं। और उसका जो हमने पिछले वर्ष, पहले हम हिंदी और अंग्रेजी में ही उसका जवाब देते थे, अब 17 भारतीय भाषाओं में हमारे जो एजेंट्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। और उसी का ये नतीजा है कि जो प्रति माह हमारे पास कॉल्स की संख्या है वो जो 2013 में लगभग 10,000 थी, वो 13 गुना बढ़ के लगभग 1,32,000 हो गई है। सो वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ दिस नंबर। दिस नंबर मेक्स अस हैप्पी कि लोगों का हमारे सिस्टम के प्रति विश्वास बढ़ा है। सचमुच हमारे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और उनके मार्गदर्शन में हम सब लोगों को काम करने का अवसर मिल रहा है। हमारी सरकार उपभोक्ता जागरूकता से आगे बढ़कर के भी हम उपभोक्ता जागरूकता ही नहीं बल्कि उपभोक्ता समृद्धि की बात कर रहे हैं। और इस दिशा में हम एक तरफ उपभोक्ता को उचित गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराने के साथ साथ दूसरी तरफ पर उपभोक्ता शिकायतों के बाधा रहित, सस्ते और त्वरित समाधान को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उनके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह भली भांति कार्य विभाग के द्वारा संपन्न हो रहा है। यह हम सब लोगों के लिए प्रशंसा और गौरव की बात है। जहां तक पहले भी कहा गया कि हमारे जो अतिरिक्त विभाग ने
यहाँ विभाग की ओर से गुणवत्ता को जहाँ BIS जैसे संस्था आज देश और दुनिया में कहा जाए कि अपनी विश्वसनीयता कायम करने में आगे बढ़ रही है। वही हमारे बहुत सारे विभाग के साथ काम करने वाले अनेक संस्थाएं मैं देख रहा हूं कि उसके जहां उपभोक्ता के मामले में अभी प्याज की बात आई थी, टमाटर की बात आई थी, अभी भारत आटा और भारत दाल, ये देश भर में हमारे विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से हम इसको उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने में सक्षम हो रहे हैं। और सचमुच में जहां मुझे लग रहा है कि एनसीसीएफ की गाड़ियां आज देश के कोने कोने में घूम रही है। मैं जब अभी प्रधानमंत्री जी का जो गाड़ियां आप देख रहे हैं देश के कोने कोने में, हर पंचायत में, हर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के जन जन के दरवाजे पर जा रही है, उन्हें जागरूक कर रही है। आज वहां भी हमारे एनसीसीएफ के लोग कुछ हद तक पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यहां बहुत सारे ऐसे लोग या जिस लोग में हम कहते हैं कि हमारे आवश्यक वस्तुओं को सस्ते दर पर जहां आम नागरिकों को हम ये सीधे पहुंचा रहे हैं, वही पिछली सरकारों के जमाने में जो चल रहे बिचौलियापन था, उन बिचौलियापन को भी हम दूर करने में समर्थ हो पा रहे हैं। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का यही उद्देश्य जन जन तक जो ये गाड़ियां जा रही है, मोदी की गारंटी, ये मोदी की जो गारंटी है, ये देश की जन जन की गारंटी है। उस मोदी की गारंटी को हम देश के कोने कोने में जन जन तक पहुंचा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे ये सारे प्रयास उपभोक्ताओं के, विशेष करके समाज के अंतिम पौधान पर बैठे हुए, जिसके बारे में कभी कोई सोचता नहीं था। पूज्य बापू जी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, राम मनोहर लोहिया जी, सब लोग कहते थे, पंडित जी ने तो कहा था, जब तक अंतिम पौधान पर बैठे हुए व्यक्ति का उत्थान नहीं होगा, तब तक इस राष्ट्र मंदिर का निर्माण नहीं होगा। और आज उन्हीं के 25 पर चल के कल अटल जी का पुण्यतिथि होने वाला है। जो कुछ उन्होंने किया उसको और भी व्यापक रूप देने में हमारे ऐसे नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश ही नहीं, वो देश के ही प्रधानमंत्री नहीं है, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि दुनिया के प्रधान सेवक के रूप में आगे बढ़ रहे, दुनिया के प्रधान सेवक के रूप, और दुनिया को दिशा देने में भारत कामयाब हो रहा है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, हम गौरवान्वित हैं। भाइयों बहनों, जहां तक विशेष करके जो उपभोक्ता आयोगों, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, BIS, NTS, जो विधिक माप विज्ञान, ये जितने भी राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, गुणवत्ता, मात्रा, मानकों और परीक्षण, इसके क्षेत्रों में उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए एक संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र के रूप में हमने उसको विकसित किया है। और
वैश्वीकरण आज का जो विषय है कि ई कॉमर्स और डिजिटल व्यापार के युग में उपभोक्ता संरक्षण का, तो हम न केवल मैंने कहा कि हम संरक्षण ही नहीं बल्कि हम उसके समृद्धिकरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और सचमुच वैश्वीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति से आए उस क्रय विक्रय में आए हुए जो इस परिवर्तन में उभरती हुई जो नई चुनौतियां हैं उसको प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 को निरस्त करके हमारी सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को जो लागू किया वह एक क्रांतिकारी कदम है। और सचमुच अधिनियम में कई विशेषताएं भी शामिल है, जैसे आयोगों में जो शिकायतों का ऑनलाइन दायर और सुनवाई करना, उसी प्रकार से केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का जो गठन हमने किया है, CCPA नामक एक कार्यकारी संस्था की स्थापना, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता को बढ़ावा देना और उत्पाद दायित्व जो ई कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग, ई कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग में अनुचित व्यापार जो प्रथाएं जो कह सकते हैं कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, हम उसको कैसे रोक सकते हैं, उसको विनियमित करने के लिए नियम बनाने का प्रावधान, उत्पादों में मिलावट और नकली सामान बेचने पर जुर्माने का प्रावधान यह सुनिश्चित किया है। जहां तक उपभोक्ता मामले में उपभोक्ता विवादों के समाधान में तेजी से लाने के लिए कई पहल की है, वहीं उन प्रयासों के परिणाम स्वरूप 2022 में यह पहली बार है कि एक साल में निपटाए गए मामलों की संख्या दायर किए जितने उन मामलों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है, अधिक हुई है। यह एक अच्छा सूचक है। उपभोक्ताओं के बिना मुकदमा किए गए अपने शिकायतों के प्रभावी निष्पादन के लिए एक प्री लिटिगेशन तंत्र के रूप में भी हमने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को भी लगातार सुदृढ़ किया है। नई डिजिटल दुनिया में जहां प्रभावित उपभोक्ता संरक्षण के लिए विभाग ने ऑनलाइन विवाद समाधान, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म को तैयार करने की दिशा में भी हमने काम को काफी आगे बढ़ाया है, जिसके माध्यम से हमने अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, विशेषकर ई कॉमर्स लेन देन से संबंधित विवादों को उकलने के लिए मध्यस्थता सुलह के माध्यम से हमने हल किया। विभाग ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पाए जाने वाले ऐसे जो डार्क पेटेंट्स है, जो अस्पष्ट और अप्रत्यक्ष तरीके जैसे उपभोक्ताओं को ठगने का भी प्रयास किया जाता है, उसको बदलाने का प्रयास किया जा सकता है, उसके 13 स्वरूपों की पहचान को भी हमने दिशा निर्देश दिया है। सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए हमने विभाग की ओर से राइट टू रिपेयर इंडिया ये पोर्टल भी हमने लॉन्च किया है। साथ ही उपभोक्ता हित में उपभोग और उसके अधीनस्थ इकाइयों द्वारा किए गए अन्य प्रणालियों को भी हमने उसके अलावा तो उनकी दिशा में हमने थोड़ी देर में उसको प्रस्तुत भी यहाँ करने का विचार रखा है। जो नए दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उस शिखर सम्मेलन में जो उन्होंने कहा था कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है, और आगे उन्होंने यह भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कई नकारात्मक पहलू है उसको भी रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि भले ही इसमें 21वीं सदी के विकास का सबसे मजबूत उपकरण बनने की क्षमता है, लेकिन यह इसके विनाश में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह सावधान भी किया है।
तो निश्चित रूप से हमें पीपुल्स अवेयरनेस एंड पीपुल्स पार्टिसिपेशन, केवल अवेयरनेस ही नहीं बल्कि हमें लोक सहयोग, लोक सहभागिता की भी आवश्यकता है। मुझे आज के इस अवसर पर आप सब लोगों से इतना ही कहते हुए कि हम सभी लोग एक दूसरे के सहायक हैं, सहयोगी हैं, और आज यहाँ जितने लोग भी आए आप सभी, आप सबके मंत्रणा और आपके सबके विचार विमर्श से बहुत कुछ आगे बढ़ने वाला है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रांति नाम दुक्रोध मोक्षा, यानी शुद्ध भोजन करने से सत्व की शुद्धि होती है और सत्व की शुद्धि से बुद्धि भी शुद्ध होता है और निश्चरिक बन जाती है, फिर पवित्र, और निश्चरिक बुद्धि से मुक्ति का मार्ग भी खुल जाता है। इसलिए हमारे लिए जो खाद्य सामग्रियां जहां मिलावट होता है उस पर भी हमें गौर करने की विशेष आवश्यकता है। इसलिए आहार शुद्धो शब्द शुद्धि। वही संस्कृत में एक श्लोक है, गुणी गुणम वेतिनो वेति निर्गुणो बलि बलम वेतिनो वेति निर्बलम, याना कि गुणी व्यक्ति सही गुणों की पहचान भी कर सकता है,